will tell you about the next lesson number 5th. I am John's Heart. I am John's Heart is an essay written by J.D. Radcliffe. J.D. Radcliffe is a lesser known writer. He writes on scientific subjects. He contributed this article, I am John's Heart, to the Reader's Digest. Reader's Digest is one of the leading monthlies of the world. He writes in a lucid and easy style. In this essay, the writer is telling us about Mr. John, who is an imaginary person. At the heart of Mr. John is telling here or describing here about itself, about its form, structure, and function. In this lesson, Mr. John is very careless about his heart. He belongs to a family in which heart disease is very common. So, Mr. John will also have a heart attack. Now, the heart of Mr. John advises him to take some precautions in order to minimize the loss of his heart. He says that heart is a very important part in our body. It works 24 hours. It means it works very hard. Heart is red brown in color. It hangs in the center of the chest with the help of ligaments. The writer describes itself, not the writer, the heart describes itself about its form and its structure also. It says that it is not a very romantic or beautiful character. Its weight is about 340 grams. Its length is 15 centimeters, and at the widest point it is 10 centimeters across. It is a 4-chambered machine. Actually, it has 4 chambers and it has 2 pumps. One pump of the heart gives blood to the lungs, and the other pump gives blood to the other parts of the body. So it works very hard till death. If there is some trouble in its 2 coronary arteries, it will be the single greatest cause of the heart attack. Actually, the heart takes its blood or its nourishment from the blood through its 2 coronary arteries. The heart of Mr. John is advising here to take some precautions in order to keep his heart fit and healthy. First of all, the heart gives here some causes of heart attack. According to the heart,
overweight, high blood pressure, smoking, too much thinking, worriedness, fatty and oily foods, all these are the causes of heart attack. So, first of all, the heart tells us that excess body weight can increase the workload of the heart. It also increases blood pressure. So, man should reduce his overweight by doing some mild regular exercises. Then, smoking is another cause of heart attack. Smoking has nicotine which is very harmful to the heart. It is a very poisonous stuff. It constricts arteries, particularly in the hands and feet. It increases the blood pressure. It also stimulates the heart to beat more rapidly. A cigarette increases heartbeats from normal 72 to 80s. Mr. John smokes 40 cigarettes a day, which is very harmful to him. It is very dangerous to his heart. So he should take some precautions here again. The heart says to him that he should get rid of smoking to keep his heart fit and healthy. He should relax himself and worry less. He should avoid taking fatty and oily foods also. He should take only balanced diet. Light reading or an occasional nap helps a lot. In other words, Mr. John should read some interesting books to keep himself relaxed. In the end, the heart says again that if we want to keep our heart fit and healthy, we should slim down our body weight, we should reduce our excess body weight, we should take regular mild exercise, we should avoid smoking, we should avoid taking fatty and oily foods also, so that our heart may remain fit and healthy to work smoothly. So this is all about this chapter, and now in Hindi I tell you that I am John's heart जेडी रैटक्लिफ का निबंध है. इस निबंध में राइटर जेडी रैटक्लिफ एक काल्पनिक इमेजिनरी पर्सन मिस्टर जॉन की बात करता है. मिस्टर जॉन का हार्ट इस चैप्टर में अपने स्वरूप, अपने आकार और अपने कार्यों के बारे में बताता है. मिस्टर जॉन का हार्ट यहाँ पर हार्ट अटैक के जो कॉजेज होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, कारण होते हैं, उनका वर्णन करता है और फिर कुछ प्रिकॉशंस बताता है ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके. मिस्टर जॉन एक ऐसे परिवार से है जिसमें हार्ट अटैक की जो डिसीज है, जो बीमारी है, बहुत कॉमन है, चली आ रही है, हेरिडिटी में है ये. इसलिए मिस्टर जॉन को भी हार्ट अटैक होगा, लेकिन इससे बचने के लिए, कम से कम नुकसान हो उसके लिए मिस्टर जॉन का जो हार्ट है उसे कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए सलाह दे रहा है.
क्योंकि मिस्टर जॉन बहुत ही बिजी टाइप का बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता अपने हार्ट की तरफ, ज़्यादा सोचता भी नहीं उसके लिए। लेकिन जब भी सोचता है हमेशा रॉन्ग ही सोचता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो। तो मिस्टर जॉन का हार्ट यहाँ कहता है, सबसे पहले अपने बारे में बताता है, अपना स्वरूप आकार जो भी है वो कहना चाहता है, और उसका जो कार्य है, जो फंक्शन है उसे भी बताता है। कहता है कि मैं कोई ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव चीज़ नहीं हूँ। कलर रेड ब्राउन है, इसका भूरा है। वजन इसका लगभग 340 ग्राम है। इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है लगभग, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। यह एक 4 चैम्बर्ड मशीन होती है, 4 कोस्ट वाली एक मशीन है, जिसमें एक्चुअली 2 पंप होते हैं। एक पंप इसकी लंग्स को ब्लड देने का काम करती है, और दूसरी जो पंप है वो शरीर की अन्य जो पार्ट्स हैं उन सभी को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। अर्थात हार्ट का जो काम है, हृदय का जो कार्य है, वो बहुत ही कठिन है। 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटे लगातार काम करता रहता है, और ये अपना जो नॉरिशमेंट लेता है, अपनी जो खुराक लेता है, वो अपनी 2 कोरोनरी आर्टरीज से लेता है। इसकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे वो खुराक लेता है, अपनी नॉरिशमेंट लेता है। और हार्ट यह भी बताता है कि ये उसका सबसे वीक स्पॉट है, कोरोनरी आर्टरीज। यदि इन कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी प्रकार कोई भी ट्रबल, कोई परेशानी होती है, तो यह सबसे बड़ा एकमात्र मृत्यु का कारण होता है। फैटी डिपॉजिट्स धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, तो उसे क्लोज डाउन कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की डिसीज़ पैदा होती है। या कभी कभी कोई क्लॉट जम जाता है आर्टरीज के अंदर, तो उससे जो स्मूथली ब्लड का आना जाना होना चाहिए उसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हार्ट का कहना है कि आर्टरीज जो इसकी है, जिनसे कोरोनरी आर्टरीज से जो ये ब्लड लेता है नॉरिशमेंट के रूप में, यदि उन आर्टरीज में कोई भी रुकावट किसी भी प्रकार की होती है, तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का सबसे बड़ा एकमात्र कारण बनती है। इसलिए मिस्टर जॉन का हृदय मिस्टर जॉन को सलाह दे रहा है कुछ यहाँ पर। उसे कहना चाहता है कि यदि उसे अपना हार्ट स्वस्थ रखना है, बिल्कुल फिट रखना है, वो चाहता है कि उसका हृदय ठीक से कार्य करता रहे, उसके फंक्शन में कोई रुकावट ना आए, तो उसे निश्चित रूप से कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और इनमें सबसे पहले वो कारण भी बताता है और फिर उनकी रेमेडीज़ भी बताता है। हार्ट कहता है कि ओवरवेट जो होता है, जो एक्सेस वेट बढ़ जाता है बॉडी का, ये भी हार्ट अटैक का एकमात्र कारण बन सकता है। क्योंकि एवरी 1 किलो एक्स्ट्रा वेट जो होता है उसमें लगभग 700 कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, जिनमें ब्लड देने का काम किसे करना पड़ता है? हार्ट को करना पड़ता है। उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। कहने का अर्थ है कि एक्सेस वेट ऑफ बॉडी हार्ट के वर्कलोड को बढ़ा देता है और यह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, यानी बीपी बढ़ जाता है इससे। इसलिए कहता है कि मिस्टर जॉन को या किसी भी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक से बचना है तो उसे अपना जो ओवरवेट है उसे रिड्यूस करना चाहिए। और उसके लिए कुछ सलाह देता है कि वो माइल्ड रेगुलर एक्सरसाइज करे, यानी हल्की फुल्की और नियमित रूप से एक्सरसाइज करे। ज़्यादा तगड़ी नहीं, स्ट्रांग नहीं करनी है, हल्की फुल्की हार्ट वाले पेशेंट को। दूसरा कारण बताता है कि स्मोकिंग, धूम्रपान एक भी, ये भी वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक।
निकोटीन एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है स्मोकिंग में या टोबैको से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनमें। ये बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हार्ट के लिए भी। निकोटीन जो है ये हमारे शरीर की जो आर्टरीज हैं, विशेषकर जो हाथ और पैर की जो आर्टरीज हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट्स कर देता है, उनको सिकोड़ने का काम करता है, उन्हें एक तरीके से एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है एक तरीके से, अधिक तेजी से बीट्स करने के लिए, बीट्स जो धड़कनें होती हैं उसकी। ऐसा कहा जाता है कि एक सिगरेट पीने से जो नॉर्मल जो बीट्स होती हैं हार्ट की पर मिनट 72, उससे बढ़कर 80 तक हो जाती हैं एक सिगरेट पीने से। और मिस्टर जॉन दिन में लगभग 40 सिगरेट पीता, जो कि बहुत ही खतरनाक है उसके लिए। इसलिए हार्ट उसे सलाह देता है कि मिस्टर जॉन को स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ही शुड गिव अप स्मोकिंग, यदि उसे अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो। आगे और भी सलाह देता है कि उसे कुछ रिलैक्स करना चाहिए, ये नहीं कि हर समय काम ही काम करता रहे। अक्सर मिस्टर जॉन की आदत है कि वो अपने ऑफिस का काम घर ले आता है, फिर ऑफिस में तो लगा ही रहता है, घर पर भी उसी कार्य को करता रहता है। हृदय यहाँ सलाह दे रहा है कि ऑफिस का कार्य घर ना लाए, घर पे वो कुछ आराम करे, जिससे कि उसका माइंड भी रिलैक्स में रहे। और उसे कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़नी चाहिए इसके लिए, जिससे कि उसकी जो वरीडनेस है वो दूर रहे। टू मच थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चिंतन करने से भी कई बार हार्ट की जो बीट्स हैं बढ़ जाती हैं, जिसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। किसको? हार्ट को करना पड़ता है। हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। तो हार्ट बार बार यही सलाह उसको दे रहा है कि यदि उसे स्वस्थ रहना है, अपने हृदय को फिट और हेल्दी रखना है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक तो माइंड रेगुलर एक्सरसाइज करे, दूसरे उसे थोड़ा स्लिम डाउन हो जाना चाहिए, यानी बॉडी वेट को रिड्यूस करे, घटाए उसे। और जो ऑयली जो फूड्स होते हैं, चिकनाई से युक्त जो पदार्थ होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनसे बचना चाहिए उसे बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी संतुलित जो आहार है वही उसे लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसे हार्ट की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े ज़्यादा। हार्ट की प्रॉब्लम तो होनी है उसे, क्योंकि उसकी हेरिडिटी में चला रहा है, ऐसे परिवार से जिसमें हार्ट अटैक डिसीज चली आ रही है, तो मिस्टर जॉन भी इससे अछूता नहीं रहेगा, उसे भी ये डिसीज होनी है। लेकिन यदि वो ये कुछ प्रिकॉशंस लेता रहे, ये कुछ सावधानियां बरतता रहे, तो उसका हार्ट क्या रहेगा? हिज हार्ट विल रिमेन फिट एंड हेल्दी एंड इट विल वर्क स्मूथली फॉर हिम टिल हिज डेथ। अर्थात उसका हृदय स्वस्थ रह सकेगा, स्मूथली कार्य करेगा, यदि ये छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान देगा तो ये सब कुछ जो भी इस लेसन में हार्ट ने समझाया या बताया है अपने बारे में, और हार्ट की जो डिसीज़ के बारे में, और हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसके क्या कॉजेज होते हैं उनके बारे में, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती, ये सारी चीज़ें इसमें ये थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेजे हुए हैं, उन्हें आप याद करते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।